Cool. Okay, so yes, we are ready to start. Hello, Chaitanya. Now I want to officially welcome you to. So this is first of the podcast series that I wanted to launch, and you are the lucky guest to be the first guest of honor for us. And I और would हाँ like to say something. Like I have seen your videos. अच्छे लगे मुझे. The kind अच्छा of content that you're sharing, cricketing terms में. It's like more like what we used to discuss in college. तो हम दोनों अलग-अलग हो गए हैं. We still talk. हम तो बात करते ही हैं. But it's good to show it to the world your views. क्योंकि हम लोग अभी तक सुनते ही थे. मतलब internal discuss करना is a different thing. ये good. हाँ, तो अभी तक एक्चुअली जस्ट टू ऐड मोर ऑन व्हाट यू सेड, तो अभी तक काफी सेमी प्रोफेशनल भी नहीं, यू कैन से सेमी प्रोफेशनल अभी तक है. बट हाँ, मतलब आई एम लुकिंग टू बिल्ड ऑन दिस. अभी थोड़ा एनालिटिक्स में थोड़ा ग्राफिकल और वो सभी चीजें लाने पे मैं काम कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन सके व्यूअर्स के लिए. अभी तो उतने it shows that you are like this is like coming out of your passion. मतलब ऐसे raw है, right? तो मतलब जब passion से कोई चीज करते हो आप तो definitely you get a lot of things. Like you started with something, then you want to build up on top of it. Like your interest, right? Analytics is one of the key. Cricket तो obviously हमारे एकदम खून में है. And yeah, I mean life philosophy. We talk about life philosophy as well. So all these stuff. Yep. बिल्कुल. हाँ, तो हाँ, I think just for our viewers' interest, I will quickly try to introduce you. So you hail from Rajkot. You have done your graduation from IIT BHU. You have been working in the field of analytics since last 5 or 6 years. I think you previously worked in Hyderabad, and pre-COVID era you worked in Hyderabad, and then Yep. you have, I guess this year only, you have moved to US. Yeah. So yes. मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि how has the experience been like, previously working in Hyderabad and now in US? I think a lot of our viewers, which are not many, but they will probably know about the Indian work culture. But I believe they would be interested to know about US work culture. And I think currently the model is hybrid. You go to office and you work from home as well. So if you can talk a little bit about your experience so far. Yep. So yeah, I guess I mean it has been like close to 3 months. So I've been previously to US for short trips, like just for business trips. But abhi is baar jab aaya, when you are joining as in the US team, you feel that you are closer to business in terms of making decisions. You're like driving the decision making system, right? That is in terms of just simply work. But अगर हम देखें culture wise काफी difference है, right? काफी मतलब it's just like we are India we were like a support system to what we are doing over here, right? So when you come over here, you feel that you're closer to this kind of thing, right? Business kind of thing है. तो मुझे यही लगा कि एक बहुत important factor यही है, and how people are in India, right? So हम मतलब जो ऑफिस जाते हैं तब भी थोड़ा मतलब बीच में मस्ती करते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. कोई यहाँ पे होता है, लाइक व्हेन आई गो टू ऑफिस यहाँ पे कम लोग आते हैं, बट जो मतलब जो मेन टाइम होता है इंटरेक्शन का, राइट? पीपल ओनली इंटरेक्ट ड्यूरिंग दैट द लंच ब्रेक और समथिंग. बीच में you don't get to see like वो चलो यार कोई नाश्ता करने चलते, कॉफी पीने चलते, मतलब ऐसा होता है. नॉट सेइंग दैट पीपल डोंट डू इट, बट थोड़ा सा people try to say okay 9 to 5 I'm doing to do my 8-hour job, बस I'm just responsible for that 8 hours. उसके बाद I'm with that is also right. The time का काफी मतलब यहाँ पे वो होता है. इंडिया में probably we just extended कि हाँ चलो let's do it, तो वो वाला चीजें थोड़ा होता है कि इंडिया में मतलब. but in terms of I think the kind of people, right? So इंडिया में बहुत ज्यादा talented people होता है. that I felt like that कि मतलब जैसे काम करना होता है तो इंडिया में you can like
अच्छे लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे मिलते हैं बट यहाँ पे लोग है ना थोड़े ऐसे होते हैं कि यार दिस इज नॉट माय एरिया, ये किसी और का है। अपन क्या करते हैं कि हाँ मतलब सर, तो वो सब चीजें हैं। दैट इज इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, अ लॉट ऑफ कल्चरल, आई थिंक द मेन डिफरेंस इज नॉट अबाउट वर्क, मेन डिफरेंस इज अबाउट कल्चरल सेटिंग अप। जब हम इंडिया से यूएस आते हैं माइंड सेट काफी चेंजेस होते हैं। तो यू नो फिर वेदर वाला भी एक फैक्टर होता है। लकीली अभी वेदर इज गुड, बाद में जाके यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो आई मीन बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, whereas इंडिया में वो सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते हैं, चिल होता है, जब जाना वहां होता है जाओ। कल्चर तो इज प्रोज एंड कॉन्स दोनों का है, राइट? so बट बिफोर यू जंप इनटू कल्चर के बारे में, इससे पहले की बात करें तू, so ऐसा तो नहीं है कि बस तेरे साथ लोग हैंग आउट नहीं करते हैं? हैंग आउट और डूड, मुझे कितने रैंडम लोग मिले हैं हैंग आउट करने के लिए। अरे नहीं, तू देख बोल रहा ये था ना चीज कि है, ऑफिस ये के। चीज जरूर है। नहीं नहीं नहीं, वर्क वाइज बोल रहा हूँ। ऐसे इन टर्म्स ऑफ हैंगिंग आउट, यहाँ पे अगर यू डोंट हैव अ ग्रुप तो यू आर वेरी लोनली, राइट? और ये लोग कहाँ मिलेंगे? लाइक यू जस्ट गो टू ऑफिस, तो अपनी अपनी लाइफ में, वहां पे तो हाँ मतलब फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं बट कम होते हैं रिलेटिवली, राइट? जैसे आई वेंट टू अ नवरात्रि दिस थिंग इवेंट, राइट? तो वहां पे मुझे रैंडमली आई मेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, देन वी कनेक्टेड, वी देन हैंग आउट टुगेदर। ऐसे देन आई मेट सम अदर, हर एक कुछ कुछ चीजें होती है ना, कोई कोई बाहर जाते हैं तो वहां पे कोई रैंडमली मिलता है, ऐसे ऐसे। तो people are there, right? हम साथ में बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट, राइट? क्रिकेट also is a one key factor. I started playing cricket. I never thought, I mean, it's a very huge thing. I stay in New Jersey, right? So a lot of Indians are there over here. तो यहाँ पे क्रिकेट का कल्चर बहुत ज्यादा है, you won't believe it, right? और ये it's a good opportunity for someone who is very talented, right? तो उसके लिए I'm not saying I'm very तू तू talented, but I'm अपने saying बारे जो में भी बोल रहा है talented है, कि तो इंडिया अच्छा। में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा कम होता है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाइज काफी मतलब एक्सपोजर मिलेगा, राइट? तो टेनिस बॉल टूर्नामेंट, लेदर बॉल टूर्नामेंट, दोनों का सेम, मतलब दोनों के इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अभी सीजन खराब है, दैट वोंट बी देयर, बट इट इज देयर। आई मीन इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। क्रिकेट यहाँ पे बूम हो रहा है, 2024 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है यहाँ पे, तो सही सही। तो हाँ, तू तो कल्चर में क्या डिफरेंस है इंडिया और यूएस में? तू पहले बता रहा था कि कल्चरली थोड़ा डिफरेंस है एंड यू वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो मतलब आई वुड से एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक कोई इफ यू वांट टू परस्यू अ पैशन इन इंडिया, राइट? कोई भी एक छोटी चीज है, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड साइड ऑफ इट, राइट? कल्चरल साइड का नहीं, एक गुड साइड ऑफ जैसे ये है कि इफ यू हैव अ पैशन ओवर हियर एंड यू वांट टू फॉलो योर पैशन, तो यू हैव लाइक वो वो चीज में एक छोटी, मतलब जैसे कोई भी, जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं यार, मतलब कोई कुकिंग भी होता है ना, मतलब इट इज गोइंग टू इन डेप्थ, मतलब तुम्हें जो करना, हाइकिंग है तो हाइकिंग में मतलब एक अलग लेवल तक पीपल आर फुल्ली गोइंग इन, फुल्ली कमिट करो, सो बेसिकली फुल्ली फुल्ली कमिट करो। कमिट, दे आर लाइक, अगर अगर आई एम इनटू क्रिकेट तो वो पूरा A to Z मतलब सब तुम्हें मिल भी जाएगा, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग ओवर हियर। लाइक इफ यू वांट समथिंग ओवर हियर, वहां पे क्या है, पैशन को हम फॉलो करते हैं बट एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, राइट? माइंडसेट का ही हाँ डिफरेंस है वहाँ। यहाँ पे माइंडसेट पीपल का ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही, कॉलेज से लेके, मतलब यू हैव टू लाइक बी ऑन योर ओन, पहले से ही वो मनी खुद का करना है। वहां पे इंडिया में थोड़ा डिफरेंट होता है, इंडिया में मतलब लोग मतलब पेरेंट्स पे मतलब अपन करते हैं, राइट? तो अपन पैशन फॉलो करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार पैशन फॉलो करेगा तो यार ये काम नहीं कर पाएगा, सो इंजीनियरिंग नहीं कर सेफ पाएगा, ये सेफ तो सेफ साइड पे चलते हैं हम, बेसिकली सेफ साइड पे चलते हैं यहाँ पे इन तुम जनरल। वो भी करो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें लाइक यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू विल गेट, द थिंग इज यू विल गेट मनी फॉर एनीथिंग दैट यू डू। पीपल कुछ भी जो भी सो लोग आई थिंक करते दैट हैं, इज द तो रीजन। सो आई that थिंक people are not afraid of एग्जैक्टली हाँ। going deep into their passion because they know that कैसे कैसे ना कैसे they will be able to do something, right? मतलब पैसे तो कमा लेंगे, people will be happy। survivorship instincts यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी है, because करना पड़ता है। if you are not going to be on top of your things, तो यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। that's what I felt in इंडिया से कंपैरिजन में, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। आई थिंक टॉप, मे बी मेरा rather माइंडसेट than अलग था top, इंडिया में। rather than being on top, I think what you mean is ki uh, if you are not fully committed to what you want to do, so the culture is not ki you are
you are jack of everything. I think it's more around you have to be master of something, master of one thing. And I think the word that sums up what you highlighted is social security, right? So वहाँ पे एक social security है, लोगों को पता है कि opportunities हैं, employment की opportunities हैं, और they will do well, so they don't have to compete or they don't have to kind of get away from the middle class barrier जो कि हमारे इंडिया में है काफी ज्यादा, right? So I think social security की वजह से भी लोग actually commit कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि let's say उन्हें fail भी हुए तो there are backup options. They will not financially, ऐसा नहीं होगा कि उन्हें मतलब उनके पास जो job opportunities होंगी वो बहुत ही decent नहीं होंगी, so they don't feel like that. मतलब मिनिमम वेज ज्यादा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ जॉब भी चली जाएगी तो कुछ ना कुछ करके दे विल बी एबल टू सर्वाइव. बट आई वुड से वन मोर थिंग जो बहुत ज्यादा मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, लाइक इज द कैपिटलिस्ट माइंडसेट. यहाँ पे इंडिया में लोग अपन सोचते हैं ना कि मतलब लोग बहुत सोचते हैं मतलब पैसों के, यहाँ पे मतलब लोग 10 times है वैसे एवरी फकिंग थिंग. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट एवरीथिंग कुछ भी है, ठीक है, छोटी सी चीज में भी मतलब अपॉर्चुनिटीज मार्केट है, उसमें भी पैसा कमा लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. लाइक बहुत ज्यादा मनी माइंडसेट, और ये माइंडसेट बहुत अच्छा मतलब इट्स नॉट गुड आई फील, बट पीपल आर लाइक दैट थ्रू आउट. पीपल विल जज यू ऑन एवरीथिंग, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू, वहां पे भी होता है वो, बट यहाँ पे मुझे ज्यादा लगा बिकॉज यहाँ पे माइंडसेट सबका यही है. दैट्स इट. इफ यू आर नॉट देयर देन टाटा बाय बाय. If you have money, then that's how it is. I thought it shouldn't be like this over here, but यहाँ पे तो और ज्यादा है. यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, millions कमा रहे हैं, फिर भी लोगों को मतलब whatever. So people are enjoying, not like people are not enjoying. People उड़ा रहे हैं पैसे उड़ा रहे हैं, but mindset जो है ना वो materialistic है, काफी materialistic है, काफी ज्यादा, like काफी ज्यादा, right? So that is not good. I don't know. I mean, if we are going towards that in India as well, because we are like supposed to be third. I think we are. I think we are. We are. So we should be learning out of it, right? We should not. I think it might. India जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मतलब पूरा ले रहा है, उसको मॉडिफाई करके जो लाना चाह रहा है, हाइब्रिड है, राइट? अपना फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा है, वो है, और प्लस ये माइंडसेट इसका हाइब्रिड होगा, मतलब नॉट नेसेसरली डायरेक्टली जो है इनका मतलब उठा के मतलब रख दिया, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ देयर विल बी सम हाइब्रिड व्हिच विल बी इंडिया इज ऑब्वियस. सो आई मीन एज फार एज इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इंडिया में भी सोसाइटी जैसी हैं, राइट? आई थिंक इंडिया में भी सोसाइटी जैसी हैं, साउथ बॉम्बे जिसको लोग वो बोलते हैं, राइट? आई थिंक या फिर साउथ दिल्ली हो गया, राइट? सो आई थिंक इन सब सोसाइटीज में लोग तुझे तेरे अपीयरेंस से जज करेंगे, और क्योंकि मतलब इट्स गिव एंड टेक. ब्रांड के कपड़े पहने हैं वो सब तो हो है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा लगा मुझे. ऐसा तो नहीं कि वहां पे बस तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग. नहीं अरे मैं आई एम टेलिंग यू कि आई नो दैट, बट ऐसा होता है, राइट? मतलब व्हिच इज नॉट गुड. एवरीथिंग मतलब अभी पार्टी मतलब क्या बोलूं. एनीवेज, तो ये है बड़ा एक फैक्टर, राइट? तो और प्लस ऑब्वियसली सोशल लाइफ यहाँ पे है बहुत, मतलब हाँ, बट इट्स ऑल लाइक यू नो रियल. इफ यू वांट टू फाइंड लाइक रियल पीपल, दैट वुड बी जेन्युइन पीपल, दैट वुड बी यू नो यू हैव टू लाइक हैव दैट कनेक्शन. बाकी यहाँ पे लोग बहुत ऐसे, इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एनीथिंग, पीपल हैव ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस तो वहां पे भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत यहाँ पे ज्यादा मतलब लोग का माइंडसेट ऐसा है ना कि मतलब आज नहीं होता चलो ठीक है कल खत्म, इज डिफरेंट. तो मतलब जेन्युइन रिलेशन और जेन्युइन कनेक्शन भी थोड़ा मुश्किल है, बट सोशली यू विल सी दैट ओ ये यहाँ पे फ्रेंड्स है, जैसे मैं सोशल, इवन इफ यू आर विद पीपल यू फील दैट मतलब ऐसे ही है, मतलब दे आर लाइक देयर, बट यू डोंट हैव लाइक जेन्युइन कनेक्शंस और तो. बट मतलब आई थिंक इंडिया में इतना कम टाइम में मतलब तुझे लगता है कि बना सकते हैं जेन्युइन कनेक्शन? इंडिया इज वेरी गुड. इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज रियली गुड. नेक्स्ट 10-15 years is going to rule the world. यहाँ पे भी Indians are like sort of you know very good position, right? If you see around,
एवरीवन इज एक चीज है यहाँ पे यूएस में ना, हर जगह से आते हैं लोग। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इंडियन हो ना, तुम बाहर से, ऐसा नहीं। यहाँ पे पूरी दुनिया के हर कंट्री से आते हैं, तो सब एक जैसे ही है, सबका माइंडसेट सेम ही है कि हाँ सब यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, राइट। ये जो इंडिया यूएस में रहते हैं वो अलग है सिटीजन्स। तो लोगों का ये भी माइंडसेट होता है कि मुझे जिसको यहाँ पे रहना है कि मुझे सिटीजन के साथ रहना है या ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ रहना है, वो सब भी बहुत ज्यादा रहता है। नॉट जस्ट इन इंडियन पीपल, इन अदर रेसेस, या आई मीन सब जगह सर वो कॉमन। तो अगेन वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट की हाँ यहाँ पे ज्यादा ये होगा। बट हाउ आई सी इट इज, आई जस्ट सी इट लाइक व्हेन आई मूव्ड इन लाइक पर्सनली। तो मैं अभी क्या देखता हूँ कि मैं सिर्फ आई एम जस्ट लुकिंग एट इट लाइक इन टर्म्स ऑफ कि मैं एक दूसरे कंट्री में मूव हुआ हूँ, दैट्स इट। लाइक आई एम जस्ट वर्किंग ओवर देयर, आई एम जस्ट टेकिंग स्लोली टाइम। मुझे अभी ऐसे लॉन्ग टर्म का या ऐसा नहीं सोचना है, बट मुझे डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं यहाँ से ऐसे मेरे माइंड सेट में चेंजेस करने हैं। कुछ गुड चेंजेस है, यू स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स, खुद करना पड़ेगा, नाश्ता खुद बनाओ, ये खुद करो, वो खुद करो, वो सब चीजें तो। I can imagine that being difficult But for you. that's a learning curve as well for someone like me who didn't do anything, right? So that's a good learning curve. That is a good thing, but I don't know if it's good for everyone or not. So out of 10 कितना 5 7 कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा अभी तक यूएस में? इसमें you'll have to ask me. In general अभी तक तूने जितना टाइम स्पेंड किया है, लेट्स से इंडिया में जो था उसको तू 10 बोल, इंडिया में जो तू तेरा जो प्रोफेशनल वर्क जो रहा है टाइम। I mean it's difficult to do it at this one because it's been 3 months, but I would say one thing, it has been getting better every month. Okay. That I would say. कि धीरे-धीरे you adjust it, you understand it better कि how people react to things क्या है। मतलब कुछ चीजें इंडिया में ऐसे for granted ले, तो यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। धीरे-धीरे वो है, but it is getting better, but obviously इंडिया higher ही है हमेशा मेरे लिए। Okay. So we will end this segment now, working experience और in general US के culture का की जो हम बात कर रहे थे। But before closing this segment, I think you have quite a significant experience in the field of analytics, and like you have good credentials as well in terms of your BTech degree and the organizations that you have worked for. I think you have been there with one organization only. Yeah. But I just I wanted to check if you would be okay to help out people who are pursuing in the field of analytics. If it's okay Absolutely, with you. Okay, perfect. So if it's okay with you, we will share your LinkedIn profile in the comments so that people who are watching this video or who will watch this video are able to kind of reach out to you and seek help